सत श्री अकाल। कई लोग इत्थे आके अड़िका लग जाता है। सतगुरु राम सिंह पातशाह दी बख्शिश दे नाल उस वेले दी संगत जिहड़ी सी वो सारी दी सारी संगत ने सतगुरु जी दी रचना तो नाम सुनिया है। क्यों कि उदों दा विधान इस तरह दा सी कि भजन दसन वाले जिहड़े वो दस दिंदे सिख नूं भजन। ये नहीं सी कि भजन दसन दा हुक्म नहीं सी। सतगुरां ने अपनी नजरबंदी दे दौरान च ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्म दे के भजन दसना शुरू कीता सी और इस चीज नूं उन्हां मूर्तिमान कीता सी कि मैं घर घर राम सिंह पैदा कर दियांगा। निरे सूबे ही भजन नहीं सी दसदे, होर भी जिस जिस प्रांत दे विच कोई साधु भजन बंदगी करन वाला सी उन्हां नूं हुक्म सी भजन दसन दा। ते पर कोई भी भजन दसदा सी जिन्ना चिर सतगुरु राम सिंह प्रदेश नहीं सी गए ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਵਾ ਲੈਣੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਜਨ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਭਜਨ जब दसदा होएगा ते फिर उन्हां सिंघां नूं किन्ना भजन फुरदा होएगा। सिखां दे मन विच अंदर तड़फ है कि किथे है प्रीतम, किस तरह उन्होंने उड़ के जा मिलीए, जिस तरह कि वो संगत इस तरह पढ़दी हुंदी सी। हाँ संगत कहंदी घट घट रवण हार कदों करिया दीन सरा दर्श दीदार लई तरस देन दूजा सज्जन मंडिया देई सिंध उतार नैन महीने तरस दे पता न बने है मेरा आमरा लिया कानू पार समुद्रों तेरा लिया संग कहती सतगुर जी की लिया कानू पार समुद्रों तेरा संगतां इसी तरह बिलकदियां हन। कोई
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਯਾਦ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗੂਨ ਹਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੇਖਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕੇਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਸੰਤ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2000 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਗਏ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਬਾਲਿਓਂ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਠਹਿਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਮੋੜਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਉਤਰੇ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਿਆ, ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਤੰਬਾ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਉਦੋਂ ਬਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਧ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋ ਨਾ ਤੁਰੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਜੇ ਚਲੋ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਚਨਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਬਕ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਤੂੰ ਮਕੈਨਿਕੀ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ, ਉਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਕੁਥਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਟੇਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਖਾਏ, ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਖਾਏ।
दे इसे तरह रस्ते दे विच मर्यादा रखी हुई है, जल नहीं उन्हां दा छकदे ते भुखे प्यासे जाके रंगून पहुंचते हैं। उत्थे कोई टिकाणा करके प्रसादा पानी छकिया ते फिर सतगुरु की भाल दे विच हुण निकले हैं, पहुंच गए हैं उस बंगले दे कोल जिथे सच्चे पातशाह बैठे हैं। सामने दर्शन हो गए हैं। इन्ने चिर दे विछड़िया नूं दर्शन होए होणगे, उन्हां दी आत्मा की खुशी वो जानते होणगे कि किस तरह तकलीफां झा के अपने महबूब के दर्शन होए हैं ते सारियां तकलीफां भुल गईयां हैं ते बारिश होनी शुरू हो गई। अंब के दरख्त के थले खड़े हैं ते फरीद का श्लोक याद आ गया है। सैयो शब्द याद आ गया ते नाल ही कलेजे च रुख भर गया ते कहते हैं वाकई जिहदा प्यार हुंदा है उन्हें ही पता हुंदा ते किस तरह फरीद ने क्या होएगा। अंब दे थले खड़े हैं, कपड़े भिज गए हैं, गौरमेंट दी अखां तो बचन का डर है कि किते पता ना लग जाए ते सतगुरु प्यारे का दर्शन सामने हो रहा है फिर भी महंगा नहीं दसदा ते सतगुरां दा जद ध्यान इधर आया ते अखां चार होईयां ते उधर उधर इशारे दे नाल ही नमस्कार कीती ते फिर
अपना जिहड़ा लिखिया सी पुरजा अर्जी दा वो सतगुरां दे वल सिटिया पहरेदारां दी अख बचा के। इसे तरह ही रोज दर्शन मेला दूरों खड़े होके करते हैं, मगर चरण परसन का सुभाग नहीं प्राप्त होता। ते आउण लग्या जदों 4 दिन हो गए तो सतगुरु जी ने लिख के हुक्मनामा ओदे नाल ये लिख दिता कि हुण इत्थे ना ठहरो, हुण तुसीं वापस चले जाओ ते जाके साडे अंग्रेज राज का बेड़ा गर्क करन लई ओ ये बीड़ा चुकिया। संत टहल सिंह जी ने ओ हुक्मनामे सतगुरु जी का हुक्मनामा ओ अपनी दस्तार दे पेचां दे विच दे लिया ते रंगून तो चल पे कलकत्ते आ उतरे। हुण अपने भारत वर्ष च पहुंच चुके हैं, पर पता पता बैरी है। CID एक मिनट मिनट ते खड़ी है कि पता नहीं कि गुरु राम सिंह दे पास किस टाइम भी सिख चले जाएंगे। ते आए जहाज तो उतर के प्यास बड़ी लगी है, हुण खूही किथे लभणी सी कलकत्ते शहर दे विच ते नारियल लै के उन्हां दा जल छकण दे वास्ते अजे तैयारी करते हैं ते पुलिस वालियां ने आ घेरा पाया। कित्थों है, की गल है, कौन है तू? बस वो इन्ने सवालों की बुछाड़ कर दी कि उन्हां दी सुध बुध भुला दी ते जो कुछ सी सतगुरु दी रजा ना उन्होंने दसिया ते ओ पुछ पछ के खिसक गए। अपने वालों सारी तलाशी लै गए, सब कुछ ना मिलिया, चले गए। शुक्र करके तुरन की तैयारी करते उन्होंने मन च पता नहीं की है, फिर मुड़ के आ गए। कहते तेरी पग दे विच नहीं असीं ना की तलाशी लई। ते हुण सतगुरु पातशाह नूं याद करते हैं सतगुरु राम सिंह जी नूं कि गरीबनवाज एक ते पवित्र हुक्मनामा जिहड़ा मैं गुरु हरि सिंह जी की हजूरी जाके पेश करना, एक ते ये गुम हो जाएगा, दूसरा थोड़े ते आके की पता नहीं मुश्किलां होर ढाउणगे, तंग करनगे। मैनू अपनी परवाह कोई नहीं, क्यों कि मैं ते तेरे दर तो कुर्बान हो चुका। जिस तरह फिर दस्तारा लाउणा इदां ही नहीं ला के रख देना या ला के उस तरह सिर ते रख लेना। हुण ओ चाली जिहड़ी सी उस दे मुताबिक नायतां अरदासां करदे हैं भाई तलोके वांगू कि सच्चे पातशाह तेरे हथ मेरी लाज है। हुण अपने विरुद्ध दी पैज रखो सच्चे पातशाह, नानक लाज बिरद की राखो नाम तुम्हारो लीना। ते एक एक पेज इस तरह खोलते हैं, कहते हैं देख लिया, कहते होर खोलो खोल। अंबाले उतरे, अंबालियों फिर इस तरह ही गुप्ती तौर पर सतगुरु हरि सिंह पातशाह की हजूरी दे विच आके वो पवित्र हुक्मनामा सतगुरां दे हजूर पेश किया। हुण मेरा पातशाह सतगुरु राम सिंह उथों हर एक हुक्मनामे दे विच सानू की तकीद करते हैं कि भाई भजन बाणी तकड़े होके करना ते मेरे निमित्त ग्रंथ साहब दे भोग पाने। कई सिख जाके अर्जा करते सन कि सच्चे पातशाह जदों इत्थे सन सतगुरु जी कि सानू हुक्म करो ते असीं सीस देण नूं तैयार, असीं सरबंस बार देंगे। सतगुरु जी उथों हुक्मनामे च लिखते हैं कि सरबंस बारन की नहीं लोड़, जिन्हां दे सीस लगने सी उन्हां दे लग चुके हैं। हुण ते जे कर सकते हो तो मेरे निमित्त पाठां दे भोग पाओ। सानू भजन बाणी ने इत्थे भी इन्ना सुख दे छड्या है कि जिहड़ा बर्मा दा लाट साहब है वो आके आप पुछ जाता है सतगुरां नूं कि कोई तकलीफ किसी चीज की। सतगुरु जी पहले जद इत्थे इस बंगले च आए ते खूही नहीं सी ते जल दी तंगी सी, बाहरों लियाउणा पैंदा सी, पहरे दे नाल जाना भाई नानू सिंह ने ते जल लियाउणा। ते फिर सतगुरां ने हुक्मनामे च लिखिया कि खूही अंदर लुआ दी है गोरे ने और किसी किस्म का भी दुख नहीं, दुख है लागी होए सो जाने, लागी होए सो जाने, राम भजन
सतगुरु की साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते, रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। शब्द का पढ़ना जड़ा वो इउं पे पंक्ति मगरले भी लैन पे फिर ते स्वाद आउंदा। मैं स्वरजा बेनतियां दे नाल ही कोई टाइम पास करांगा। सतगुरु राम सिंह पातशाह दे परथाए मैं अर्जा करदा सां कि गरीब नवाज प्रदेश गवन कर गए। उस तो बाद गुरु हरि सिंह पातशाह जी ने सिੱਖੀ ਨੂੰ हरी रखण दे वास्ते रात दिन भजन बंदगी एक रस कीता ते ਉਹ अंग्रेज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਫਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ किस तरह का समा बनया है। भैणी साहब जिहड़ा कि सचखंड सतगुरु राम सिंह पातशाह की हजूरी दे विच सचखंड बनया सी ते कोई बंदिश नहीं सी। साध संगत खुले दर्शन मेले करती सी और गहमा गहम सी। उथे अंग्रेज दी ओ जुल्म दी हनेरी झुल के उस बाग दे विच खिजा आ गई। सिख इकट्ठे होने नहीं मिलते, कोई मेला लगन का हुक्म नहीं मिलता। भैणी साहब नूं एक कारागार बना दिता जिस तरह कोई जेल होंदी है। जेल दे कैदियां नूं जिस तरह कि जिहड़े ज्यादा जुर्म दे भागी होण उन्हां दी हाज़री लाई जाती है दिन च 3 बार ते नामधारी पंथ सारा ही जुराइम पेशा करार दिता गया और पिंड पिंड इन्हां ते निगरानियां लग गईयां। हुण बाबा दरबारा सिंह जी सतगुरु राम सिंह जी के दर्शन कराए हन ते हुक्मनामा लाए हन। टहल सिंह जी सेखवां वाले सनियारे सिंह वो सतगुरां दे दर्शन कराए हन। होर जिवें जिवें किसे नूं पता लगदा है क्योंकि ज़ाहरा तौर ते ये गल ज़ाहर करनी बड़ी एक मुश्किल सी कि सतगुरु राम सिंह जी का पता लग गया है और वो रंगून हैं। जे ये पता लगता अंग्रेज नूं ते हो सकता अंग्रेज पहले किते होर जगह उन्होंने पहुंचाने की कोशिश करता। जे उन्होंने ये पता लग जाता कि नामधारी सिंह सतगुरु राम सिंह के पास भेस बदल के आते हैं और चिट्ठी पत्र लै जाते हैं और संगत का संदेश जो है वो सतगुरु जी नूं दे जाते हैं। अमृतसर के जिले दे विच एक सरहाली नगर है, बहुत सरदारां दा वड्डा उगा। उथे एक घराना जिन्हां दा नाम संत श्याम सिंह जी, सरदार श्याम सिंह जी करके एक श्याम सिंह जी अटारी वाले सन। ये भी बहुत चंगे तकड़े सरदे पुजदे कई पिंडां दे मालक सन ते सिख राज दे खत्म होने तो बाद ये अपना नगर दे विच ही खेतीबाड़ी का काम कराउंदे हन। पर सरदे पुजदे होने करके ये माया जिहड़ी है इनू सतगुरु बख्शिश करे ते फिर ही भावां ये किते चंगे थां लगदी है, नहीं तो फिर बदफैली वल नूं झुकाव जरूर हो जाता है। वो चीज़ां ऐसियां मल्लो मल्ली आके ग्रस लैंदियां हन पुरुष नूं कि उन्होंने पता भी नहीं लगता कि मैं किस तरह मनमतल ते कुरैह तल जा रहा हाँ। शराब मास ते होर कई किस्म के व्यसन करने वो शुरू कर दिंदा है। वो माया जिहड़ी उन्होंने वरतन वास्ते थां नहीं लगता। इस तरह एक घराना भी है, मास शराब वरतते हैं और बड़े सरदार हैं, रईस नौकरां चाकरां की कोई गिनती नहीं। सतगुरु राम सिंह पातशाह का दौरा जदों अमृतसर के इलाके च गया, सतगुरां दे दर्शन होए ते भजन पुछया सरदार श्याम सिंह जी ने नामधारी सिंह सजे और नामधारी फिर किस तरह दे कि मोड़ ली लैन दे ते सतगुरु पातशाह ने कृपा की। भजन दसिया रात दिन एक रस भजन करते हैं। उस घराने दे विचों संत जीवन सिंह जी होए और उस घराने दे विचों ही बाबे श्याम सिंह होना दे लड़के छोटे बाबा मियां सिंह जी जिहड़े 3 बार सतगुरु जी के दर्शन करके आए समुद्रां तो पार। सो मेरा कहण दा भाव जिस वेले पता लगा ते सरदार श्याम सिंह होनी ये सतगुरु हरि सिंह जी के दर्शनां वास्ते भैणी साहब आए इजाजत लैके गौरमेंट तो
अर्ज की सच्चे पातशाह कि कृपा करो ते मेरा दिल बड़ा करदा कि सतगुरु राम सिंह पातशाह के चरण परस के आवां। सतगुरु हरि सिंह जी ने बचन किया भई काम ते बड़ा चंगा पर तकलीफां भी बड़ियां हन। तुहाडा शरीर बिरध है, रस्ते दे विच थां थां पहरे लगे हुए हन ते पता लग जाए किसी नूं कि नामधारी है ते फिर तुहानू बड़ी तकलीफ होएगी। संत श्याम सिंह जी कहन लगे कि भावें कुछ भी होवे पे मेरा दिल ये करदा कि एक बार मैं सतगुरां दे दर्शन कर लवां इन्हां नेत्रां नाल ते फिर मैं अपना शरीर सौखा त्याग सकांगा। सतगुरां ने उन्हां दी तीव्र इच्छा देख के उन्हां नूं आग्ञा दे दित्ती और समझाता किस तरह जाईदा। उन्होंने जाके पिंड अपना सारा कुछ इंतजाम करके तैयारी कर दी, भेस बदल के कलकत्ते जा पहुंचे। कलकत्तियों जहाज ते बैठ के रंगून पहुंचे। सतगुरु राम सिंह पातशाह दे दर्शन करते हैं जिस बंगले सतगुरु जी निवास करते हैं। जदों मिले हैं सच्चे पातशाह ते इसे तरह चिट्ठियां दे नाल ही उधर उधरी बचन हुंदे हन। हुण जे कदी अंग्रेज नूं इह पता लग जाए इदा तो है नहीं कि सतगुरु जी प्रदेश रहिंदे हन ते सिख जिहड़े जांदे हन जाके सतगुरां पा डेरा लाउंदे हन और दर्शन मेले करते हैं, कोल बैठ के बचन बलास करते हैं। इन्नी ते इजाजत नहीं। हवा सारखी दे विच तां रिपोर्टां लिखियां जांदियां हन कि नामधारी सिंह कोई आया, भेस बदले हुए हन, मगर मगर बगी दे जाके तुर के कदे बचन सुनते हन, कदे लिख के कागज ते कोई अख बचा के सतगुरां दे बंगले दे विच सुटदे हन और उधरों जवाब लैंदे हन। ते सतगुरां पास अर्ज कीती गरीबनवाज बख्शिश करो, कदों दर्शन दिओगे? संगत दे विच बहुते शरीर बिरध हो गए हन और बहुते शरीर चढ़ाई कर गए हन, बहुते शरीर बेसरदक हो गए हन। समा है सतगुरु जब समा प्रेर दिंदा ते जिहड़ा बड़ा एक श्रद्धालु सिख भी है वो अपनी बहादरी दे नाल सिदक कायम नहीं रख सकता। ओदी ये रजा है। जिस वेले बंदे दे मन च कोई हंकार दा कंडा पैदा हुंदा, जोगा सिंह जी, भाई जोगा सिंह जी सतगुरु दे हुक्म दे अनुसार ओह लावां दे विचों ते अपनियां लावां छड़ देंदे हन, मगर हंकार आ जांदा है कि मैं सतगुरु दे हुक्म ते किन्ना तुलिया हां, किन्ना सिरकवान मैं सिख हां। उस हंकार दे कारण करके हुशियारपुर आके सतगुरां दे हजूर पहुंचण तो पहले ही डोल जांदे हन। ये सिख दे बस दी गल नहीं। सतगुरु बख्शिश करे ते सिदक कायम रहिंदा ते बहुत बेवल हो के लिखिया कागज सतगुरां दी हजूरी दे विच पेश कीता कि गरीबनवाज बख्शिश करो ते संगत दे विच तुसीं जिहड़े बूटे लाए सन वो पुट हुंदे जांदे हन। ते सतगुरु जी सुभावक बचन कीता, कहण लगे कि आवांगे तदों जदों संबर सूरी फिरेगी, भाई रूसां दे नाल आवांगे। बाकी रही गल जिहड़े बुढ़े हो गए हन उन्होंने फिर जवान कर लांगे, उन्होंने घ्यो रखा है। जेड़े चढ़ाई कर गए हन वो मुड़ के साध संगत दे विच जन्म लै लैणगे ते जेड़े बेसरदक हो गए हन वो जदों जाके पहली बार ही दर्शन मेला होएगा ते पहल छले दे मींह वांगू जिस तरह डड्डू बोल पैंदे हन इस तरह आ जाणगे। ते सतगुरु जी ने हुक्म फरमाया कि भाई जिन्ने भी हो सकते हैं पाठ करो ग्रंथ साहब दे साडे दर्शन दे निमित्त। जिस तरह संगत नूं विछोड़ा है साडा, सानू भी संगत दा दे विछोड़े दा बहुत दुख है। ते सिंघां ने पाठ किन्ने कीते ये मैं किसी फेर दीवान दे विच किसी दूसरे अर्ज करांगा। ते बाबा श्याम सिंह जी 3-4 दिन रहे और फिर हुक्मनामा लैके सच्चे पातशाह सतगुरु हरि सिंह जी की हजूरी च आए। आके हुक्म सुनाया सतगुरां दा कि गरीबनवाज दा हुक्म है कि पाठ कराओ। पाठ लगे हन पिंडो पिंड होण ते उधरों अंग्रेज ने भी करड़ाइयां कर दित्तियां। उन्होंने पता सी कि ये जब पाठ करके अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह अपने संत खालसे का प्रकाश कर, महामलेश का नाश कर, ते उन्होंने पता सी वो पूछ लेंदे सन कि महामलेश किसनू कहते हैं ते सिंह अगे उन्हें धड़क जवाब देंदे सन कि जेड़े गऊआं खांदे हन वो महामलेश हन, उन्हां दे नाश वास्ते असीं अरदास करते हैं। ते उन्हां पाठां ते इन्नियां पाबंदियां लातियां कि पाठ करन वाले सिंघां नूं कैदां भुगतनियां पैंदियां और काले पानी दे कष्ट झरने पैंदे ते पाठ भी लुक छिप के हुंदे। हुण श्री भैणी साहब सतगुरु हरि सिंह जी ने पाठ आरंभ कीते हन अखंड। पता है सतगुरां नूं
भई ये साडे पाठां दे विच विघन पाउण तो कदी भी रुकणगे नहीं अंग्रेज। देवड़ी दे विच पुलिस दा पहरा है, पुलिस वाले भी वो लाए जाते हैं जिहड़े कट्टड़ बेईमान होण और दुख देण वाले होण, वो पहरे दे उत्ते लाए जाते हैं। उन्हां हाकमां नूं लाया जाता है, चाहे वो सिखां विचों होण चाहे मुसलमानां विचों होण, किसी कौम चों होण, जिहड़े नामधारियां दे कट्टड़ विरोधी सन उन्हां नूं लाया जाता। हुण अंदर पाठ शुरू होए हन, रिपोर्ट देण वालियां ने रिपोर्ट देती कि गुरु हरि सिंह जी ने पाठ आरंभ कीते हैं ते सच्चे पातशाह जी ने जिथे लंगर है इत्थे एक थल्ले भोरा बनाया सी। उस भोरे दे विच एक ग्रंथ साहब प्रकाश रहिंदा और एक सिंह इशनान करके तैयार वर तैयार बैठा रहिंदा ड्यूटी ते। भई हो सकदा किहड़े वेले आके उपर जिथे अखंड पाठ तोरियो हन जालम उस पाठ नूं खंडित कर देण, विघन पा देण ते उस पाठी नूं हुक्म हुंदा सी जिहड़ा उस टाइम पाठ करदा होवे उहनूं हुक्म हुंदा सी कि उच्ची देनी उस पाठ दी तुक पढ़ देनी ते ओ सिंह ने हेठां जिहड़ा भोरे च बैठा सी उसने वो तुक सुण के उत्थों ही पाठ उहने चालू कर देना ते ओ सिपाहियां नूं पता नहीं सी कि इहदे थल्ले जिथे दाणियां दा गल्ला इत्थे थल्ले भोरा बनाया उहदे विच भी अखंड पाठ तोरिया जा सकदा ते ओ उपरों उपरों सिंघां नूं गिरफ्तार करके धूफियां नूं पाठियां नूं लांगरियां नूं उहनां नूं गिरफ्तार करके लै जांदे। इस तरह कई बार कई चांस होए पर सतगुरु पातशाह गुरु हरि सिंह जी इदां दे करड़े समय दे विच गुरु हरि सिंह जी दी महिमा कौन वर्णन कर सकदा। एक पासे ते अंग्रेज दा इन्ना दमन चक्कर है कि मिंट मिंट ते पुछां कीतियां जांदियां हन कि फलाना तुहाडे पास क्यों आया, फलाणे नूं क्यों तुसीं इन्ने दिन रखिया, मगर सी नहीं उचारदे। दूसरे पासे अपने देश दे लोग सिख संस्थावां जिन्हां ने कि गुरु राम सिंह पातशाह वास्ते लिख दिता सी, जिस वेले रंगून सतगुरु जी विराजमान हन एक दिन ओथे दे गोरे नूं आख्या कि जां ते साडा कोई दोष साबित करो ते नहीं फिर सानू इत्थे काहनूं डकिया है, सानू देश भेजो। ते वो कहंदे लो फिर उन्हां नूं पता सी क्यों कि उन्हां नूं रोज चिट्ठियां लिख लिख के जिहड़े साडे मुखी सज्जन सन सिंह सभा दी जिहड़ी नींह है ना ये सम्मत 1928 जिस साल सतगुरु राम सिंह जी नूं जिला वतन कीता उसे साल इहदी नींह रखी गई सी। इधरों चिट्ठियां पत्तर जांदे सन कि गुरु राम सिंह मुड़ के वापस देश दे विच ना आउण, जे ये आ गए ते तुहाडा राज नहीं रहेगा। उन्हां नूं पता सी कि साडीआं गद्दियां भी नहीं रहणगियां ते इस तरह दे ओ गवर्नमेंट नूं चिट्ठियां लिखदे रहिंदे। जदों गवर्नमेंट दे कागज उधरों आए रंगून तो उन्हां ने सारे वड्डे वड्डे डेरियां वालियां नूं जगीरदारां नूं राजियां महाराजियां नूं पुछया और कल्ले कल्ले दे कोल भेजे कागज। उन्हां ने दस्तखत कर दिते कि राम सिंह देश दे विच वापस ना आवे, जे ये आया ते ये देश दे विच गदर मच जाएगा। असीं किड्डे ना शुक्रे हां जिस पातशाह ने साडी गिरी हुई कौम नूं असीं गले हूंजण वाले सानू बड़ी टुकी जात दुनिया सददी सी। जिस दिन तो सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने अवतार धारिया इस कौम दे विच इहदे दलिद्र कर दिते। इन्हां दीयां धगां झुलदियां हन और इन्हां दे पास इन्नी समग्री है, इन्ने कारखाने चलदे हन, मगर दात प्यारी विसरिया दातारा उस पातशाह नूं गुरु ना सही किसी लीडर दे रूप दे विच ही उसदी फोटो अपने घर ला लेंदे कि हाँ ये साडा कोई बड़ा वडेरा होया जिसने साडे वास्ते की कुछ नहीं कीता, मगर असीं इस पासे नहीं तुरदे। हुण सतगुरु हरि सिंह पातशाह दूसरे पासे घर दे विच ही विरोधता हुंदी है, घर दे विचों ही कई किस्म दे बुरे भले शब्द सुनते हैं, मगर सहनशीलता दे नाल उस पंथ नूं इसे तरह ही तोरी जाते हैं ते सतगुरु दी याद दे विच अठे पहर वैरागी रहंदे हन। जिस तरह ओ एक शब्द दे विच किस तरह फरमाया कि किस तरह सतगुरां नूं उड़ीकदे हन कि रुत्तां जिहड़ियां हन ये मुड़ मुड़ के आई जांदियां हन। बसंत वाले दिन सच्चे पातशाह प्रगट होए सन, बसंत मुड़ के आ जांदी है मगर पातशाह नहीं आए।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।